communicable diseases. See? Exactly. Contagious diseases are communicable diseases. An example of that? Corona. Corona HIV. Yes, good. AIDS, बिल्कुल. Chickenpox, measles, ये सारी contagious diseases हैं that can spread from person to person, ठीक है? And there are certain preventive measures for that. What are the non-communicable diseases? Like breast infection, cancer, हाँ breast cancer. Diabetes cancer, yes. ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है इनका, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी लॉन्ग होता है. फॉर एग्जाम्पल द सिम्टम्स आर देयर इन द बॉडी बट इट इज दे आर लेटेंट, ठीक है, डोर्मेंट होता है. तो ऑर्गेनिज्म इज डोर्मेंट और सिम्टम्स अपेयर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेक इट देयर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड, दैट आर नॉट एक्चुअली communicated from one person to the other, ठीक है. So इनके एग्जाम्पल है सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हाइपरटेंशन आ जाएगा, सीवीडीज आ जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस आ जाएगा, ऑल दोज डिजीजेस दैट आर chronic in nature, that are not acute in nature. Chronic diseases क्या होती हैं? Over a long period of time, ठीक है, उनका incubation period होता है और symptoms appear होते हैं after a long period of time. That is the reason they are modifiable factors जो आप modify कर सकते हैं to prevent those diseases to occur. That I'm talking about non-communicable diseases, ठीक है, क्योंकि इनका incubation period long है, chronic diseases है. That is the reason इनका जो symptoms हैं they appear after a longer period of time, ठीक है. So yes, this is what communicable and non-communicable diseases are, ठीक है. Usually non-infectious, these are infectious, ठीक है. You all know the difference. क्या difference है, ठीक है. So the important thing over here is that कि यहाँ पे हम समझें कि किस तरह से transmission of disease और epidemiological triad जो है, I'm sorry थोड़ा सा ऊपर चला गया. This is epidemiological triad of the disease. This is for the infectious diseases. तो हम बात कर रहे हैं ना, for example tuberculosis है, ठीक है. We are talking about the measles for example, ठीक है. Dengue, malaria, ठीक है. These are basically vector-borne diseases for example, और सारी contagious diseases इसमें हम triad बनाते हैं, जिसमें we have the Host, agent, ठीक है. तीन चीजें हमें याद रखनी होती है, the agent, host and the environment. So remember जो भी infectious diseases हैं उसका triad बनता है. For example tuberculosis है, ठीक है. tuberculosis में disease tuberculosis है, but agent क्या है वहाँ पे, क्या हो सकता है? For example वो बैक्टीरिया जो tuberculosis, pneumonia, host कौन है? person, ठीक है. ह्यूमन में क्या क्या आएगा? इम्यूनोडेफिशिएंट है, ह्यूमन इम्यूनिटी उसकी कम है, ठीक है. अगर पॉवर्टी है, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. प्लस ये कि मे बी इन चिल्ड्रन हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक है. सो ठीक है, these are all the host factors that I'm talking about, ठीक है. और उसके बाद environment क्या होगा? Surroundings, all the surroundings, that is unhygienic conditions, living in a close proximity with each other, ठीक है. एक ही कमरे में 6 लोग रह रहे हैं. तो हमारे पास पाकिस्तान में रूरल एरियाज में वो रहे कि they have less space to live, ठीक है. There are 6 person per room, और जो normal जो person per room वो 2 person per room होना चाहिए. But 6 people living in a room, of course, I'm sorry, 4 कितना बड़ा room है. It depends upon the space as well. depends on the stage. 4 कैसे है? 5 भी हैं, 6 भी हैं. ये this is a matter of concern. मैं एक बात करें ना, I'm saying that's true because of the reason that cubic space per person is at least 2 people in a room, ठीक है. आप जो हो वो पता, मुझे नहीं पता कि उसका क्या cubic size है, क्या नहीं है, but then again it has to be, if it is like that, it is a matter of concern. हमारे लिए आवाज़ उठानी. So प्रोटेस्ट करते हैं. क्या? ओके, इसी के अंदर
इन्वायरमेंट की हमारी बात होगी, ठीक है। अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें, डिजीज इज फॉर एग्जांपल मलेरिया, व्हाट डू यू थिंक द एजेंट शुड बी? मलेरिया पैरासाइट। हाँ, प्लाज्मा। उसके बाद फिर वेक्टर यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर कौन है यहाँ पे? फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, एनोफिलिस है ना। वेक्टर क्या है? मॉस्किटो की बात करते हैं, आर्थ्रोपोड है ना, आर्थ्रोपोड है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ के आ जाए, सही है। सो एक वेक्टर हमारा कौन है? मॉस्किटो है। वी हैव होस्ट इज अगेन ह्यूमन, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट इज अगेन the puddles, ठीक है, कोई भी area that is not clean properly, and it provides a breeding space for mosquito. I'm just letting you know because आपका जो this is important because of the two diseases that I described, communicable and non-communicable. उसके हिसाब से किसका ट्रायड कहाँ पे कैसे ट्रांसमिशन हो रही है, कहाँ पे क्या बन रहा है और किस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो रही है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज फॉर द इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है. Remember that whenever you come across an infectious disease, vector-borne disease, you have to follow this model of transmission. Got it? Okay. Web of causation. What do you think? ये मॉडल किसके लिए होगा? Non-communicable diseases. जितने भी non-communicable diseases हैं, या उनको हम कहेंगे multifactorial diseases, जिसका एक रीजन नहीं है, या मल्टीपल रीजन जिनकी वजह से एक डिजीज हो रही है, तो वो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस. तो उसके लिए मॉडल हम फॉलो करते हैं वेब ऑफ कॉजेशन, ठीक है. ये वेब ऑफ कॉजेशन है जो हम फॉलो करते हैं फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है मायोकार्डियल फंक्शन का, सही है. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लीडिंग टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है. अब there are certain stresses, there are diet factors, hormones related to it. Stress, a person, ठीक है, stressful है तो smoke कर रहा है, ठीक है, smoke कर रहा है तो coagulation of arteries हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से heart disease हो रही है. अगर for example diet है, physical activity है, ठीक है, obesity है, ठीक है, it can be, of course, obesity can be hereditary as well, ठीक है, but obesity leads to hardening of the vessels, that is atherosclerosis, leading to first physical inactivity, hypertension, leading to multiple factors, heart disease, stroke, ठीक है, and the hypertensive disease. So basically it is multifactorial. You need to understand कि जब आप multifactorial या फिर non communicable diseases की बात कर रहे हैं तो ये foreign से नहीं हो जाती, non infectious है, ठीक है. So they have multiple reasons for the disease to occur. There is no one reason for that. अब पिछली स्लाइड में जब हमने बात की थी तो एक रीजन है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, इन्फेक्शियस है, ठीक है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जिसको कवर कर रहा है. सो दिस इज फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है. एंड यू हैव द वेब ऑफ कॉजेशन इज फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है. सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजीजेस दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है. कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए you have web of causation, which is a multifactorial causes है जो disease occur होती है, ठीक है. अब now we come to the three links of the chain. अब this is the chain of the transmission of the disease, ठीक है. We have to break this chain. जहाँ पे हम break कर सकते हैं, we as community health workers or public health workers, we have to break this chain to prevent the transmission so that the disease does not occur and not the host does not get infected. So इस तरह से है starting off with infectious agent, ठीक है. That can be anything that I told you earlier. You can get epidemiological trial with the epidemiological trial, ठीक है, सेकंड में रखी infectious agent है, ठीक है. What is the difference between a reservoir and a host? ये reservoir है, वो host है जिसको infection हो रहा है. reservoir क्या है? कैरियर होता है जो yes, कैरियर हार्बर करे जिसमें ऑर्गेनिज्म प्लस ये है कि उसके अंदर वो हार्बर तो कर रहा है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वहीं से सारे इन्फेक्शन जनरेट हो. सो दैट कैन बी, सॉरी, source that can be
an animal reservoir, human reservoir, ठीक है, environmental reservoir, anything can be a reservoir that harbors the disease itself, ठीक है, that has the disease itself. और जिसको हो रही है डिजीज वो होस्ट है, ठीक है. देन दे आर इंटरमीडिएट होस्ट एंड डेफिनेटिव होस्ट एज वेल. इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देता है वो एजेंट टू द डेफिनेटिव होस्ट जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, फर्दर रेप्लिकेशन होती है. और फर्दर फॉर एग्जाम्पल लार्वल स्टेज है, ठीक है, लीशमेनियासिस है, ठीक है. लीशमेनियासिस का जो थर्ड लार्वल स्टेज के बाद जो एडल्ट वर्म है दैट इज गेटिंग डेवलप्ड इन ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन बॉडी इज द डेफिनेटिव होस्ट इन द प्रोसेस इन द डिजीज ऑफ लीशमेनियासिस. It is again a vector-borne disease that is transmitted by the mosquito culex. So over here, when we talk about the infectious agent, ये infectious agent है, reservoir है. ये infectious agent जो है reservoir के अंदर है, ठीक है, यहाँ से हार्बर हुआ, उसके बाद exit होगी क्या है, there are different modes of transmission. Remember different modes of transmission क्या है? Direct हो सकता है, indirect हो सकता है. Direct from person to person, ठीक है, जो हमने बात की फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, चिकन पॉक्स, वन पर्सन टू दी अदर. बट इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? थ्रू वेहिकल, फॉर्माइट्स, जैसे वेक्टर है, ठीक है, ये फॉर्माइट्स है. फॉर्माइट्स यानी कि डोर पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उस पे हैं, टावल पे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, व्हाई डू वी आस्क द जो पेशेंट होता है फॉर आइसोलेशन? बिकॉज इट इज एन एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट डिजीज एज वेल. मतलब वो ड्रॉपलेट्स जो है थ्रू स्नीजिंग एंड कॉफ वो बड़े ड्रॉपलेट न्यूक्लाई होते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल डोर हुआ, टावल हुआ, ठीक है, उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाते हैं थ्रू विच द ट्रांसमिशन कैन अकर. बट ऑल्सो इन द एयर, एयर से अगर आप इनहेलेशन करते हैं, सो डू यू थिंक एयरबॉर्न इज मोर डेंजरस और द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? एयरबॉर्न, बिकॉज वहाँ पे जो ड्रॉपलेट जो न्यूक्लाई होते हैं एयर के, उसके अंदर जो इन्फेक्शन न्यूक्लाई होते हैं दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी डिग्रेड वेरी इजीली. सो दैट इज व्हाई एयरबॉर्न इज मच डेंजरस देन दैट ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है. सो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स है, ड्रॉपलेट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वेक्टर है, वेहिकल है, एयरबॉर्न. सो रिमेंबर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस, ठीक है, ये वाला पार्ट. आगे जाकर हम इसको देखते हैं कि हम हाउ कैन वी स्टॉप द ट्रांसमिशन, how can we help the reservoir, how can we just get or clean or wipe out the infectious agent, ठीक है. How can we protect from the transmission to occur, and then the exit is finally जो susceptible host है जिसको infection हो रहा है उसको किस तरह से protect किया जाता है. So this is the host, that is the exit portal, that is the disease is then transmitted to the host through different methods, either through nasal passages, ठीक है, oral passages, ठीक है, GI, through blood or skin direct itself. So this is basically the whole chain of transmission. यहाँ तक कोई difficulty है, starting with the communicable and non-communicable, then divided into the web of causation for non-communicable and the epidemiological triad, and then the chain of infection. You have any difficulty there? No, formites फॉर्माइट्स का ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब नॉन लिविंग जो चीज़ है ना, जैसे डोर हुआ, डोर के ऊपर जो है ड्रॉपलेट स्नीज किसी पर्सन ने किया, ठीक है, उसके वो जो ड्रॉपलेट्स हैं दैट इज स्टक टू द डोर और टावल और एनी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, तो दैट इज फॉर्माइट, एनी नॉन लिविंग. किसमें formites और droplet फॉर्माइट और ड्रॉपलेट नहीं, तो ड्रॉपलेट तो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये है कि आप स्नीज कर रहे हो या कॉफ कर रहे हो, उससे जो है जैसे टिश्यूज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस में टिश्यूज़ हैं, ठीक है, आपने नॉट यू मीन्स एनी पर्सन पेशेंट स्नीजेस और कॉफ और उस टिश्यू को उसने कहीं भी इंस्टेड ऑफ डिस्पोज करने के खुले डस्टबिन में छोड़ दिया, वहाँ से भी तो इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है ना. सो व्हाट डू यू से ओवर हियर, आप जो भी टिश्यूज़ हैं, इन्फ्लुएंजा के अंदर टिश्यूज़ जो है दे शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन.
So that is फॉर्माइट की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? मैम, रिजर्वायर में डिजीज़ अपीयर होती है या ये कैरियर होता है? आई एम सॉरी, रिजर्वायर में डिजीज़ अपीयर होती है या फिर ये कैरियर होता है? कौन किसका? रिजर्वायर। रेजर्वॉयर कैरियर नहीं होता बेसिकली। हाँ, कैरियर आप इस तरह से कह सकते हैं, इट्स बेसिकली हार्बरिंग द डिजीज़, ठीक है? वहाँ से डिजीज़ जो है ट्रांसमिट हो रही है, तो कैरियर ये नहीं कहलाएगा। नो, जो रिजर्वायर है ये वो पर्सन है जिसके अंदर या कोई एनिमल है जिसके अंदर ये डिजीज़ है। Exactly. तो इसके अंदर ये अपीयर हो रही होगी, इसके अंदर नहीं अपेयर होती। सिर्फ होस्ट के अंदर जा। एग्जैक्टली, होस्ट के अंदर ये उसको हार्बर कर रहा होता है, इसके अंदर नहीं होती। जैसे कि रेबीज के अंदर रैपिड डॉग जो है उसके अंदर मतलब जो बेसिकली रेबीज वायरस है दैट इज हार्बरिंग द डिजीज, ठीक है? वो जब बाइट करता है स्लाइवा के थ्रू दैट इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन। सो दिस इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क me, please ask over here, because if there is any confusion kindly let me know so that we can move forward. Yeah. अब देखो एक हमारा क्वेश्चन आ गया, रेजर्वॉयर क्या है, ठीक है? इन एनी पर्सन एनिमल आंखों को, ठीक है, प्लांट सब्सटेंस इन व्हिच इन्फेक्शन lives and replicates in such a manner that it can be transmitted to the susceptible host. यानी कि susceptible host को different methods से exit तो होगा ना इसके अंदर से, exit होगा और ये फॉर एग्जाम्पल रेजर्वॉयर है, ये छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक है? इससे exit हुआ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इसको लग गया, ये मतलब है, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली अ रेजर्वॉयर, अ पर्सन या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने अंदर हार्बर कर रहा है एंड देन ट्रांसमिटेड टू द ससेप्टेबल होस्ट। ह्यूमन रेजर्वॉयर में, ठीक है, इनमें केसेस और कैरियर्स हैं, ठीक है? वो बात आ गई केसेस और कैरियर्स क्या क्या है, ठीक है? अब केसेस वो जिसमें सिम्टम्स है, कैरियर्स जो सिर्फ कैरी कर रहे हैं डिजीज, ठीक है? एनिमल रेजर्वॉयर्स, ठीक है, रेबीज की जैसे मैंने बात की, येलो फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है? एंड वी हैव रेजर्वॉयर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, इनएनिमेट मैटर सच एज। We need to understand, ठीक है, person in the population of a study group identified having a particular disease is a case, ठीक है? Has a disease is a case, but not a carrier, ठीक है? Having the disease is a case, ठीक है? अब now what is a clinical case? Having symptoms is a clinical case, ठीक है? Having any symptoms is a clinical case। जैसे incubation period जो है, incubation period का क्या मतलब है? वो टाइम जिसके दौरान डेवलपमेंट होती है एग की। फर्स्ट सिम्टम जब तक डेवलप ना हो वो इंक्यूबेशन पीरियड है ना। ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी इन द बॉडी अंटिल द डेवलपमेंट और अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? सो व्हाट इज सब क्लिनिकल केसेस? दोस दैट आर नॉट डायग्नोज्ड अंडरमाइन। फॉर एग्जांपल आइसबर्ग का एग्जांपल है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग शोज द क्लिनिकल केसेस व्हाइल डाउन आर द सब क्लिनिकल केसेस दैट आर हिडन, that are basically identified through screening, process of screening. So that is basically subclinical cases. Latent infection क्या होता है कि normally organism body के अंदर है but the symptoms do not appear. This is most common for the non-communicable disease. ठीक है? Primary case is the case that occurs first. इंडेक्स केस जो पहला केस हुआ है, पहले केस के बाद जो केस हुआ है वो प्राइमरी केस है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीरियल ऑफ केसेस डेवलप हुए हैं दोस आर द सेकेंडरी केसेस, ठीक है? जस्ट द एग्जांपल ऑफ केसेस यू नीड नॉट रिमेंबर कि ये क्या है, बट यस यू हैव टू रिमेंबर कि क्लिनिकल और सब क्लिनिकल में क्या डिफरेंस है। क्लिनिकल केसेस दोस हु हैव द सिम्पटम्स, सब क्लिनिकल केसेस डू नॉट हैव द सिम्पटम्स येट बट यस दे आर हार्बरिंग द ऑर्गेनिज्म और द एजेंट इनसाइड। कैरियर्स, अब कैरियर्स में क्या डिफरेंस है? इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल एंड हार्म ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन ऑफ एनी क्लिनिकल फाइंडिंग। कोई भी ऐसी एसोसिएटेड फाइंडिंग्स आपको ना मिले ऑफ दैट डिजीज दैट सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स, ठीक है? पोटेंशियल सोर्स है लेकिन उसके अंदर फाइंडिंग्स आपको नहीं मिल रही, सिम्टम्स मिल रहे। केस में क्या है? सिम्टम्स मिल रहे हैं आपको। तो ये बेसिकली कैरियर वो है, जैसे कि आप रेजर्वॉयर की आप बात कर रहे हैं, तो रेजर्वॉयर के अंदर दे कैन बी दे हैज टू बी कैरियर्स ओवर देयर दैट दे आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द सिम्पटम्स एज वेल।
transmission reservoir to host, ठीक है, through a pathogen, ठीक है, methods by which pathogen gets the reservoir to new host, ठीक है, इस तरह से new host का reservoir to reservoir, the new host through the reservoir the susceptible host से किस तरह infection transmit होता है, ठीक है, it's always of course a pathogen related with it and through different mechanisms as I told you earlier that it can be direct or indirect. Again, the mode of transmission over here, ठीक है, direct में droplet infection है, contact with soil है, inoculation to skin है, mucosa और vertical transmission, ठीक है, vertical transmission क्या है? Direct transmission through what? Come on, vertical transmission. सर्च करें सर ताकि क्या करना जल्दी से